morning, student. Today I will teach you new chapter that is metallurgy, in which we will study the general principle and the process of isolation of the elements. Now, tell me what is mineral? Actually, those inorganic substances which are extracted from the earth surface, earth crust, is known as mineral. But those minerals from which we can extract at least one metal economically is known as ore. For example, clay and bauxite. Formula of clay is Al2O3 SiO2 H2O, and that of bauxite is Al2O3 H2O. We can extract aluminium from bauxite economically, profitably, but extraction of aluminium from clay is not profitably economically. Thus, mineral clay is not ore, but bauxite mineral is ore. Thus, we can say that all ores are mineral, but all minerals are not ore. Next one is gangue. What is gangue? The impurities, the unwanted material present in ore is known as gangue. Metallurgy. What is metallurgy? So all entire scientific process in which we extract at least one metal and we purify it is known as metallurgy. What is metallurgy? The entire scientific and technological process used for isolation of the metal from its ore is known as metallurgy. Now, occurrence of metal. Among metals, aluminium is the most abundant. It is third most abundant element in the earth crust. Many gemstones are impure form of Al2O3, and the impurities ranges from chromium to cobalt. Chromium is present in ruby, cobalt is present in sapphire. Iron is the second most abundant metal in earth crust. Now we have to remember this chart. Uh, the Here in this slide I have shown you some metals like aluminum, iron, copper and zinc and their ores and their chemical formula. You have to remember them. For example, bauxite is the chief ore of aluminum, formula Al2O3 H2O. उसी तरह से आपका केवलो केवल केवलिनाइट का फॉर्मूला हो गया, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, आयरन पाइराइट, where hematite is Fe2O3, magnetite Fe3O4, siderite FeCO3, iron pyrite FeS2 ना. वही हो गया आपका कॉपर पाइराइट. कॉपर पाइराइट क्या हो गया? CuFeS2, माइलाचाइट Cu बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्यूपराइट cupric oxide, copper gland Cu2S, zinc blend na ZnS, calamine, zinc carbonate, zincite, ZnO. You have to remember this one, and it is not possible to remember them in a day. Na just repeat or revise 2 or 3 days or regularly for a week. It will be get hurted by you. Now steps of metallurgy. Metallurgy involves 4 steps. What are these steps? First step is concentration of ore. Next step is formation of metallic oxide from ore, and third step is reduction of metallic oxide to metal, and fourth step is purification. Now we will study about the concentration of ore.
The removal of impurities or unwanted material from the ore is known as concentration. It is also known as dressing or benefaction. It involves several steps which depends upon the physical properties of metal compound and impurity, that is gangue, the type of metal available, facility, and the environmental factors which are taken into consideration. First one process of concentration of ore is hydraulic washing. Hydraulic washing, it is based on the difference in densities of ore and gangue particle. Ore, first of all, ore is washed with a stream of water under pressure so that the lighter impurities are washed away, whereas heavy ores are left behind. Now, first of all, actually we grind the ore. After grading, these are subjected to a stream of water under pressure where the lighter impurities are washed away, leaving behind the heavier particle on the earth in between the wedge. See, it is hydraulic washing process, and the powdered ore are dropped down from this hopper and a stream of water is passed, due to which the lighter impurities will be flown away here and the heavier particle will be settled down at this position in between two edges. ठीक है? Next one is magnetic separation process. What is magnetic separation process? So actually it is based on magnetic behavior of ore and impurities. Impurities और आपका मैग्नेटिक ओर है उस पर ये डिपेंड करता है। चाहे तो इसमें इम्प्योरिटीज को होना चाहिए मैग्नेटिक, तो ओर होगा नॉन मैग्नेटिक, या ऐसा भी हो सकता है कि ओर है अगर मैग्नेटिक तो इम्प्योरिटीज होगा नॉन मैग्नेटिक। इसमें हम लोग दो रोटेटरी व्हील लेते हैं। वन रोटेटरी व्हील इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ठीक है, वो मैग्नेटिक होता है, एंड अनदर इज नॉन मैग्नेटिक ओवर व्हिच ए कन्वेयर बेल्ट इज फिटेड। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट को फिट कर देते हैं। कन्वेयर बेल्ट फिट किया हुआ रहता है। अब हम लोग करते क्या है कि आपका हॉपर होता है। अब हॉपर में द ग्रिंडेड ओर्स आर poured into the hopper, through which these grinded ground magnetic ores will come through the rotatory wheel, through the conveyor belt होता है। जब हम लोग हॉपर में डालेंगे ग्राउंडेड ओर को, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए गुजरेगा। जो नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक रोलर आपका बना हुआ है, उस मैग्नेटिक ओर से जब हो करके ये आपको ऑर्डर्ड और गुजरते हैं, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे रोलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो होता क्या है कि वह तो थोड़ा लेट से गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो रेडियली थ्रोन हो जाएगा, तो पहले वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक रोलर की तरफ आपको क्या होंगे, अट्रैक्टेड होने के बाद वो अलग हो जाएंगे। अब इस तरह से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका मेरा जो एप्लीकेशन है सपोर्ट ठीक से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्लाइड बहुत स्लो है। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आपको बताया था, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ओर, यानी प्योर एंड इम्प्योरिटीज, दैट इज गैंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द टंगस्टन ओर पार्टिकल्स फ्रॉम द कैल्सिटेराइट। कैल्सिटेराइट से हम लोग टंगस्टन को एक कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, तो टंगस्टन को रिमूव करते हैं। किससे, तो कैल्सिटेराइट। कैल्सिटेराइट क्या है, SnO2 हो गया आपका। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू कंसेंट्रेट
यानी कि रिमूव द इम्प्योरिटीज किसका, मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट आपका क्या है, Fe3O4 है, दूसरा क्रोमाइट और है FeCr2O4 है, एंड पायरोलुसाइट है दैट इज MnO2 है। इस अनवांटेड गैंग पार्टिकल को हम लोग इसी मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से करते हैं। उसका डायग्राम आप देखिए, इसमें देखिए दो रोलर है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर है, ये हॉपर है, ये आपका कन्वेयर बेल्ट इस पर फिट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पाउडर्ड मैग्नेटिक कोर जो है आपका वो डाल दिए। डालने से हो गया कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इधर आएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट से यानी मैग्नेटिक रोलर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा रेडियली थ्रोन हो जाएगा, पहले गिर के अलग हो जाएगा, होने लगा। मैग्नेटिक सब्सटेंसेज भी क्या होंगे, इधर आते आते थोड़ा नजदीक इधर गिर जाएगा। अब इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, ये दो रोलर हो गया। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक, सेम डायग्राम है। अब ये हॉपर है, यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक कोर को डालते हैं, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो नॉन मैग्नेटिक है वो थ्रोन हो जाएगा रेडियली और ये बाहर आकर के इधर गिर जाएगा, जबकि लेड से इसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से दोनों हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड और, हम लोग सल्फाइड बेसिकली सल्फाइड और के लिए कहते हैं, या इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द principle of wettability of the sulfide ore and the impurities, and it is tendency of the sulfide ore which will be wetted only by the oily substances oil, whereas the impurities or the gang will be wetted by water and they will be settled down. इसमें हम लोग कलेक्टर भी ऐड करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर, टू इनहांस द नॉन वेटाइबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल। मिनरल पार्टिकल के नॉन वेटाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कलेक्टर डालते हैं, जैसे पाइन ऑयल हो गया, फैटी एसिड हो गया, ज़ैंथेट हो गया। ठीक है, उसी तरह से फ्रोथ स्टेबलाइजर इसमें कुछ यूज होते हैं, जैसे केरोसिल हो गया, एनिलीन हो गया। इसका यूज क्या है, तो फ्रोथ के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जो झाग बनता है ना। ये आपका टब हो गया, इसमें हम लोग तेल मतलब सलरी डालते हैं, सलरी मतलब नॉट सैलरी, सलरी डेट इज सोल्यूशन ना। इसमें हो गया पाइन ऑयल हो गया, वाटर हो गया, जैंथेट हो गया, सल्फाइड ओर हो गया, ये हो गया एजिटेटर, इसमें रोटेटरी व्हील फिट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एयर पास करते हैं, कंप्रेस्ड एयर ना, और एजिटेटर को चला देते हैं, जिसके वजह से फ्रोथ बनेगा। इसके तेल की डेंसिटी चूंकि कम होती है इसलिए फ्रोथ ऊपर आ जाएगा, और इसी में से सल्फाइड और चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद होगा क्या आपको, कि आपको ऊपर में आ गया, और जो हेवियर पार्टिकल लाइटर पार्टिकल होगा बैठ जाएगा। एक्चुअली एक वाशर वोमैन थी, ठीक है, तो उसकी कहानी मैं कहता हूँ, इससे पहले कि इसको फिर से समझा दूँ। इसमें देखिए आपका कंटेनर हो गया, ये एजिटेटर है, इसमें रोटेटरी व्हील फिट किया हुआ है। रोटेटरी व्हील माने तो दही बनाने वाला जो ना दाल घोटनी टाइप का होता है, उस टाइप का लगा हुआ होता है इसमें। इधर से हम लोग केमिकल फीड कर दिए, क्या क्या, तेल, पानी और सल्फाइड और डाल दिए। इसमें बबल्स है, ये सैलरी हो गया। अब कंप्रेस्ड एयर पास करके इधर से जैसे ही रोटेटरी व्हील को चलाइएगा फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ ऊपर आ जाएगा। और ये सल्फाइड और की टेंडेंसी होती है कि वो तेल से जाके चिपके, और तेल से चिपक करके हेवियर पार्टिकल इधर आता चला जाएगा, और लाइटर पार्टिकल क्या होगा, वेट हो जाएगा, भीग जाएगा। भीगने के बाद पानी से भीगेगा, भीगने के बाद नीचे आके उसको हम लोग टेलिंग से इधर बाहर निकाल दिए। एक्चुअली लेडी वोमेन थी, वॉशर वोमेन लेडी थी, धोबन थी, वो कपड़ा धोती थी। तो हुआ क्या कि वो जब वो पार्टिकुलर माइनस का कपड़ा धोती थी तो बड़ी परेशान होती थी। परेशानी उसको धोने में नहीं था, वो देखती थी कि जो हायर हेवियर पार्टिकल थे, वो हेवियर पार्टिकल जो ऊपर तैरते रहता था, और जो लाइटर इम्प्योरिटीज होते थे वो नीचे बैठ जाता था, लाइटर पार्टिकल नीचे बैठ जाता था। तब वो ये कहानी जब बार बार इस चीज को ऑब्जर्व की, तो ये कहानी जा करके उसको बताती है। किसको बताती है, अपने एक साइंटिस्ट उसकी दोस्त थी ना, उसको सारी कहानी बताती है कि देखिए ना, जब भी मैं फलाने माइंस में काम करने वाले वर्कर का जब कपड़ा धोती हूँ तो हेवी पार्टिकल जो होता है ऊपर तैरने लगता है, लाइटर जो है से नीचे। तब वो साइंटिस्ट आई उसके यहाँ और देखी, तो देखी कह रही इसको तो हम लोग टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज में कर सकते हैं, डेट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तब वो इसी बेसिस पर इस फ्लोटेशन प्रोसेस का क्या करती है, इन्वेंशन कर डालती है।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब जैसे फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड और ऐसा भी तो हो सकता है कि दो दो सल्फाइड और मिला हुआ हो। तो दो सल्फाइड और जब मिला हुआ हो तो बाहर से हम लोग दूसरे केमिकल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट कहते हैं। व्हाट इज डिप्रेसेंट? इट इज ए केमिकल सब्सटेंस which is used to separate out to different sulfide or during the flotation process. Zinc cyanide removes zinc sulfide and lead sulfide. It selectively prevents zinc sulfide from coming to froth but allows lead sulfide to come with the froth. और इस तरह से सोडियम साइनाइड जो होता है आपका किसको अलग कर देता है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को अलग कर देता है। लीचिंग नेक्स्ट प्रोसेस है आपका लीचिंग, यानी केमिकल सेपरेशन प्रोसेस। तो यह इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when the ore is dissolved in a chemical substance, impurities will not dissolve while the ore will be dissolved. जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं हुआ उसको छान करके बाहर फेंक देते हैं, और जो डिजोल्व हो गया उसको फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा करके अलग कर लेते हैं। जैसे लीचिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर ना, ये एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं ना, वो लीचिंग प्रोसेस से ही किया जाता है। बॉक्साइट ओर ले लेते हैं और बॉक्साइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, हॉट एंड कॉन्क कॉस्टिक सोडा में डाल देते हैं। किस चीज में डाल देते हैं? हॉट एंड कॉन्क कॉस्टिक सोडा में डाल देते हैं, जिससे हम लोग को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग करते क्या है कि उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, जिससे हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। फिर हम लोग करते क्या है कि जो हाइड्रेटेड Al2O3 XH2O मिल रहा है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है, इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होगा, मॉइस्चर आपको निकल जाएगा, बच क्या जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा, और इस तरह से ऑक्साइड और से एल्यूमिना हम लोग निकाल लेते हैं और इम्प्योरिटीज इसमें से बाहर हो जाता है। इस प्रोसेस का यूज हम लोग आपको गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में भी करते हैं। एक या दो बार आपको एग्जाम में आ भी चुका है ना। कैसे करते हैं वो देखिए। हम लोग करते क्या है कि गोल्ड या सिल्वर के ये ले लिए, आपका सब्सटेंस ले लिए, यानी ओर ले लिए, मेटल ले लिए। अब उसको हम लोग डिजोल्व कर देते हैं मेटेलिक दूसरे साइनाइड कंपाउंड के, कोई भी साइनाइड का कंपाउंड ले लीजिए, उसमें सोल्यूशन बना के उसको डिजोल्व करा दिए। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तब उसमें होगा क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ये डाइसाइनो अर्जेंटेट या ऑरेट जो बन जाएगा। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें फर्दर हम लोग इसको एक्टिव मेटल लाइक जिंक से इसका रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइनोजिंकेट आपका बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, मेटल यहाँ पर ऑरियम हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, बाहर निकल गया, और इस तरह से सिल्वर और गोल्ड आपका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब मैं इस चीज को आपको एक एनिमेटेड स्लाइड के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए अब मैं आपको एनिमेटेड स्लाइड दिखाता हूँ। Levitation. Hydraulic classifier is a device used to concentrate an ore based on difference between the densities of the ore and gangue particles. The process is called levitation. The external view of the classifier may be seen here. The powdered ore is fed into a conical reservoir. A strong current of water agitates the powdered ore. Lighter gangue particles rise up while heavier ore particles sink down.
Hydraulic washing. Another method that works on the principle of difference in the densities of the ore and gangue particles is hydraulic washing. In this process, powdered ore is dropped over a sloping rocking table fitted with wedges as seen here. A strong current of water is passed over the table. The lighter gangue particles are washed away. The heavier ore particles remain on the table between the wedges. Magnetic separation. Magnetic separation is a method of concentration of an ore. It is used when the ore is magnetic, but the gangue is non-magnetic, or when the ore is non-magnetic, but the gangue is magnetic. The principle of the process of magnetic separation can be viewed here. The ore is passed over a conveyor belt that runs over two rollers, one of which is magnetic. The non-magnetic particles drop down first due to gravity. The magnetic particles adhere to the belt for a little longer time and drop down a little later. Thus, the ore and gangue particles get separated into different heaps away from each other. Froth flotation process. This is a method of concentration of ores used exclusively for sulfide ores. Principle involved is the difference in the wetting properties of the ore and gangue particles. The sulfide ore particles are preferentially wetted by oil, while the gangue particles are wetted by water. A mixture of water and pine oil is taken in a tank. The powdered sulfide ore is dropped in. Compressed air is blown in through the agitator. The agitator is rotated several times. Froth-containing ore starts rising up. The impurities settle down and are let out through an outlet at the bottom. Froth is dropped into a settling tank where the pure ore sinks to the bottom. Thus, the concentrated ore is ready for further processing. Liquation. Liquation is a method of purification of a metal or an ore. It is based on the difference in the melting points of the metal or ore and the impurities present in them. The metal or ore to be purified is placed over the sloping floor of a furnace. The temperature of the furnace is maintained slightly above the melting point of the metal ore, as the case may be. Pure substance, that is, the concentrated ore or refined metal, melts and flows down. The impurities having higher melting point are left behind. Dear student, on next day I will teach you second step of metallurgy, that is formation of metallic oxide from the ore.